Hello. So today we will be doing we will be starting with the new chapter number 4, principle of mathematical induction. ओके सो देखो ये चैप्टर में टॉपिक जो है वो कुछ इतने सारे हैं नहीं, सिर्फ सम्स है। टॉपिक सिर्फ एक ही है जो हम आज करने वाले हैं, वो एक टॉपिक है, बाकी कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो डोंट वरी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी and very scoring. So this chapter we are going to include in our test. So if you understand this video, then most of the parts will be covered. We will be doing the sums, don't worry, but you understand this video very carefully. So now what we are going to do, that is example 1, right? Chapter number 4 is there, principle of mathematical induction. Chapter number 4 is there. I am writing it in a short form, PMI, means principle of mathematical induction. चलो तो see, now without wasting our time, I am directly making you to understand example 1. क्योंकि अगर एग्जाम्पल 1 में है मैं आपको पूरा जो है स्टेप दिखाऊंगा तो वही सारे सम्स में एप्लीकेबल होगा, राइट? सी यू नो दैट 1 square is equal to 1, 1 cube also equal to 1, like that way 2 square equal to 2 to the 4, 2 cube equal to 2 into 2 into 2, that is 8, like that way, right? So chalo, first our example is there, for all n greater than equal to 1, for all n greater than equal to 1, prove that 1 square plus 2 square till n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 is equal to n plus 1 2n plus 1 divided by 6. तो हमें ये प्रूव करना है, राइट? Now how we are going to do, you see the NCERT textbook, okay? You will get this question from there. Chalo, now I hope that you can see on the board very clearly, everything is visible. Yes, this is plus 1 only, okay? After that the bracket is closed. Chalo, so now how we are going to find, or how we are going to prove? Yes, how we are going to prove this? See, first of all we are going to take one thing, that is step 1. तो हम लोग स्टेप 1 में ये करने वाले हैं, that is in answer step 1. See, स्टेप 1 में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है ना उसे लिखना है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, दैट इज लेट p of n, let p of n, p of n means this sum only, 1 square plus 2 square means ये पूरा यहाँ पे लिखना है। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू राइट देयर। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, if I keep n equal to 1, then here you see
1 square plus 2 square plus n square. What is value of n? 1 square equal to 1 only. Okay, so 1 square equal to 1 only. So 1 will be equal to, you keep 1 over here, 1 into 1 plus 1, 1 into 1 plus 1, 2 plus 1 by 6. So 1 equal to 1 plus 1 2, 2 into 3 6, 6 by 6, so 1 equal to 1 only. हमें सिर्फ ये दिखाना था कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो ये क्वांटिटी सही आएगी. ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि भाई हमने n 1 रखा, 1 प्लस n प्लस 1, सो 1 प्लस 2 n प्लस 1, 2 इंटू 1, so that is 2, 2 plus 1 that is 3, 3 into 2 6, 6 into 1 6, 6 by 6 came now equal to 1. Therefore p of 1 is true. What do you have to write? Therefore p of 1 is true. चलो अब इसके बाद स्टेप टू, हर एक सम में, हर एक इन एवरी सम यू हैव टू डू दिस स्टेप ओनली. वॉट एवर दिस गिवन दैट यू हैव टू राइट p ऑफ n. इफ इट इज गिवन x देन यू हैव टू राइट p ऑफ x. देन उसके बाद x इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 1 या तो फिर y इक्वल टू 1, वॉट एवर इट मीन. चलो नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 इज दैट यू हैव टू राइट, assume that p of k is true. आपको सिर्फ एज्यूम करना है कि p of k ट्रू है, भले हो ना हो कोई बात नहीं, बट हमें एज्यूम कर लेना है कि p of k क्या है, ट्रू है. तो अगर p of n जो है ये पूरा है तो p of k क्या आएगा, 1 plus 2 square plus means 1 square plus 2 square plus 3 square till k square equal to k into k plus 1, 2k plus 1. देखो मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सिर्फ जहां पे n है वहां पे k रख दिया, that's it. Wherever n is there I have kept here k. Wherever n is there I have just kept k. चलो तो यहां तक समझ में आया. मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है. स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्या किया मैंने, जो भी क्वेश्चन था उसे मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि अंदर जो है वो स्मॉल n है. अगर x होता तो मैं लिखता p ऑफ x, बट अंदर जो है वो स्मॉल n है तो मैंने लिखा p ऑफ n. एंड p ऑफ n इक्वल टू ये जो भी है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, सो लाइक दैट वे. चलो नाउ स्टेप 2. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू राइट स्टेप 2. सो व्हाट इज स्टेप 2? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट इज आई एम एज्यूमिंग, हाँ उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने n की वैल्यू रख दी. सो n की वैल्यू 1. इन एवरी सम यू हैव टू गिव 1 ओनली. x, इफ इट इज गिवन x, सो कीप x इक्वल टू 1. और if it is given n, keep n equal to 1. तो I have kept n equal to 1. So 1 square plus 2 square plus 3 square, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 ही है, तो ये फर्स्ट टर्म ही आएगा. अगर n equal to 2 है तो 1 square plus 2 square ऐसे आएगा. n equal to 3 है तो 1 square plus 2 square plus 3 square like that way. But if n is 1 only, so 1 square is 1. So I have kept here 1. अब वहाँ पे मैंने 1 रखा तो आंसर मेरा सेम आया. ओके, सो दैट वी कैन कंटिन्यू. अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता है तो वी कैन नॉट कंटिन्यू, बट हमेशा आएगा ही, राइट. नाउ स्टेप 2 में क्या करना है कि वी हैव टू एज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू. तो मैंने एज्यूम किया कि p ऑफ k ट्रू है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6. वेर एवर n इज देयर आई हैव केप्ट देयर k. चलो दिस इज योर स्टेप 2. नाउ स्टेप 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. स्टेप 3.
In step 3 we will prove that P of k plus 1 is true. चलो तो how we will prove, right? How we are going to prove. तो फर्स्ट ऑफ ऑल P of k में हमने क्या लिखा था, हाँ अब P of k plus 1 अगर करेंगे P of k plus 1, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगी, सी अगर P ऑफ n में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर है, तो P ऑफ k प्लस 1 में क्या आएगा, यू कंसिडर ओनली LHS 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल एडिशन करके k प्लस 1, क्योंकि n की जगह पे k प्लस 1। बट आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये ब्लैंक क्यों छोड़ी, तो आप मेरी बात सुनो, 1 देखो 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1, तो k प्लस 1 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा k स्क्वायर, यहाँ पे k माइनस 1 होल स्क्वायर, k माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ऐसे ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, वाई आई हैव रोट दिस, बिकॉज अब ध्यान से देखो स्टेप 2 में ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, दिस होल द थिंग, व्हाट इज इट्स वैल्यू, a into k plus 1 2k plus 1 divided by 6 plus k plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो स्टेप 2 में इसके वैल्यू क्या थी, k इंटू यहाँ पे जो n है वहाँ पे k रखना है बस। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। So I am taking k plus 1 common. So k plus 1 is common. Inside what will remain? K into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 divided by 6। ये पूरी टर्म में से मैंने k plus 1 कॉमन ले लिया, k plus 1 कॉमन, k plus 1 टू स्क्वायर, सो k plus 1 कॉमन, k plus 1 common, so k into 2k plus 1 inside, plus 6 into 1 time k plus 1 is left, so that is inside. So can I write k plus 1 into 2k plus 1, sorry 2k plus 1 not, yes, now what to do for this, k plus 1 2k square plus k plus 6k plus 6 divide by 6। So k plus 1 2k square plus 7k plus 6 divide by 6। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे, राइट, if you will solve this, then k plus 1 into, I can write k plus 1 plus 1 2 into k plus डिवाइडेड बाई 6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो k प्लस 1 है हमारा, p ऑफ प्लस सी, है ना। हमारे क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से,
1 square plus 2 square plus 3 square plus till n square equal to what? n into n plus 1 plus 2n plus 1 divided by 6. So this is our n. जो भी मैंने यहाँ पर सर्कल बनाए हैं, ठीक है, राउंड किया है उसे n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बाई 6. और मैंने ये कैसे लिखा? 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को अगर सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा k प्लस 2 2k प्लस 3. राइट अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को, तो आपको मिलेगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3. k प्लस 2 को मैंने लिखा k प्लस 1 प्लस 1, 2k प्लस 3 को लिखा मैंने 2 कॉमन, k प्लस 1 प्लस 1. तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया. तो हमने क्या प्रूव किया कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है. ओके, आफ्टर दिस यू हैव टू राइट देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो हर एक सम में हम यही मेथड यूज करेंगे. राइट सी डोंट वरी, वी विल सॉल्व द मोर सम्स. तो आपको ज़्यादा जैसे ही सॉल्व करेंगे सम्स तो वैसे आइडिया आएगा. राइट चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.